Good afternoon, students. Now we are going to start infrastructure, chapter 8 of Indian economic development. Now, what is infrastructure? Infrastructure refers to support system of economic and social development of a country. So, the things which are act as support system means that is used to help to grow the economy and society. For example, roads, railways, hospitals, electricity, etc. Now, these are the examples of infrastructure. Infrastructure is said to be backbone of any economy. So, the growth and development of economy overall depends on one of the most important feature, one of the most important thing, and that is the infrastructure. So, for the rapid economic development, infrastructure, base of the infrastructure is most essential. Without it, we can't imagine of a developed countries. We can't imagine a rapid growth. So therefore, infrastructure is very important. Now, types of infrastructure. Infrastructure कितना तरह का होता है? There are two types of infrastructure. One is economic infrastructure and second one is social infrastructure. So let us discuss both of these one by one. First one is economic infrastructure. What is economic infrastructure? So for simple understanding, we can say that all the infrastructure which is related to the growth of economy, okay, or the things which support to grow the economy is the economic infrastructure. So economic infrastructure refers to such elements of support system which serve as a driving force for production activity in the economy. And production activity is the main part of growth of economy. When we talk about the economy, the economic activities, we know that production is one of the most important economic activities. So the things, the elements which support in the production process of the economy and which supports in other economic activities is the economic infrastructure. For example, power, that is energy, electricity, transport, okay, that is road network, railway networks, or waterways. Next one is communication. Yes, communication is very important. Nowadays, you know that network internet-based communication is so much advanced. However, still it is needed to be improved. Lots of improvement is required for the communication also. So, economic infrastructure we have seen. Next one is social infrastructure. Social infrastructure refers to such elements of support system which serve as a driving force for social development of a country. So the infrastructure which is related to the social development, the infrastructure or the elements of support system which serve as driving force for social development of a country is known as social infrastructure. For example, schools, colleges, hospitals, etc. So these are schools, colleges, hospitals, all these are the social infrastructure because all these are most important and essential for the social development, the development of the society. For example, schools and colleges give the knowledge, okay, it gives the skills for the work to increase the productivity. Similar to that, hospitals is used to maintain the health care of the society. Next one is importance of infrastructure. Now there are many importance of infrastructure. So let us discuss the importance of infrastructure one by one. Okay. Infrastructure promotes productivity. So most important work of infrastructure is it promotes the productivity. How it promotes the productivity?
It promotes the productivity in primary sector. It promotes the productivity in secondary sector. It promotes the productivity in tertiary sector. तो ये सभी एग्रीकल्चर आपको सेक्टर में ये आपको प्रोडक्टिविटी को प्रमोट्स करता है। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ये प्रोडक्टिविटी को प्रमोट्स करता है, और टर्शियरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर है उसको भी ये प्रमोट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे? तो यदि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए तो यदि वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ आपको अच्छा है, किसी भी कंट्री का यदि आपको इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो सिंचाई का जो फैसिलिटीज़ है वो आपको अवेलेबल है, चाहे वो वाटर पंप हो, चाहे आपको कैनल हो, चाहे फिर दूसरा सोर्सेस हो, चाहे वो रिवर्स के द्वारा हो, यदि आपको अवेलेबल है तो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी होता है वो आपको काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। यदि आपको इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं रहेगा, हमारे कंट्रीज़ में अभी भी बहुत सारे आपको पार्ट है इंडिया में जहाँ पे आपको इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे जो है पानी वाटर अवेलेबल नहीं है इरिगेशन के लिए, और इसके चलते जो प्रोडक्टिविटी होता है आपको वो आपको बहुत ही कम होता है। तो ये आपको जो है जरूरी। उसी तरह से आपको इलेक्ट्रिसिटी भी यदि आपको हर एक जगह तक रूरल एरियाज तक यदि पहुंचा दिया जाए, आपको खेत तक यदि पहुंचा दिया जाए तो ये आपको वहाँ पे हेल्प कर सकता है। तो इसी तरह से बहुत सारे आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर आपको है एग्रीकल्चर रिलेटेड, जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यदि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो गया तो जो एग्रीकल्चरल जो आपको आउटपुट है उसको मार्केट तक पहुँचाया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात किए तो ये इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, ये सब कुछ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़, ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे क्या हो सकता है आपको प्रोडक्टिविटी जो एग्रीकल्चर का बढ़ सकता है। प्रोडक्टिविटी इन सेकेंडरी सेक्टर। ना आपको मालूम है कि सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहला जो आपको बेस जो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको रिक्वायरमेंट होता है किसी भी इंडस्ट्रीज़ का वो है पावर, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी रहने से क्या होता है आपको क्या होगा, प्रोडक्टिविटी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का आपको बढ़ेगा। उसी तरह से यदि अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सबको आपको इम्प्रूव कर दिया गया है तो इससे क्या होगा आपको इसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। प्रोडक्टिविटी इन टर्शियरी सेक्टर। ना सर्विस सेक्टर का जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो है आपको कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम जो नेटवर्किंग सिस्टम है, जो इंटरनेट बेस्ड सिस्टम है, वो यदि काफ़ी साउंड रहेगा, अच्छा रहेगा तो वो आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कॉल सेंटर हो गया, बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये सब जो इंडिया में अभी आपको या कोई अलग जो दूसरा डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे आपको ये काफ़ी फैल रहा है, तो उसके लिए आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको इन्वेस्टमेंट को आपको क्या करता है, इंड्यूस करता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रहने से ही आपको इन्वेस्टमेंट जो है किया जाता है, अदरवाइज ये कोई भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेगा। Infrastructure generates linkages in production. Inter-industrial linkages, it is a situation when expansion of one industry facilitates the expansion of the other. इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको प्रोडक्शन यदि एक इंडस्ट्री में हो रहा है तो आपको यदि प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो रहा है किसी एक सेक्टर में, किसी एक इंडस्ट्री में, तो आपको दूसरा इंडस्ट्री जो है उसका भी प्रोडक्शन आपको इंक्रीज होगा, उसका भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज है वो एक दूसरा से इंटरलिंक्ड है। जो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर का जो इंडस्ट्री है आपको वो इंटरलिंक्ड है मैन्युफैक्चरिंग से, मैन्युफैक्चरिंग इंटरलिंक्ड है आपको सर्विस सेक्टर से। यदि आपको एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो वो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकता है इंडस्ट्रीज़ को, और इंडस्ट्रीज़ फिर उसको यूज करके जो है आपको मैन्युफैक्चर कर सकता है प्रोडक्ट को। तो यही बोला कि इंटर इंडस्ट्रियल लिंकेजेज जो है ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से जनरेट होता है। जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम यदि आपको डेवलप कर दिया गया तो एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है वो इजीली आपको इंडस्ट्रीज तक पहुंचाया जा सकता है। सो इंटर इंडस्ट्रियल लिंकेजेज इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन एक्सपेंशन ऑफ वन इंडस्ट्री फैसिलिटेट्स द एक्सपेंशन ऑफ द अदर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेंसेस साइज ऑफ द मार्केट। ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प्स टू इंक्रीज द साइज ऑफ द मार्केट। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होता है आपको मार्केट का साइज जो है वो आपको बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम यदि आपको डेवलप हो गया है तो
साइज, मार्केट का साइज बड़ा हो जाता है। मान लीजिए रेलवे, ब्रिटिश, आपको मालूम है कि ब्रिटिश जो है रेलवे इसलिए आपको डेवलप किया था ताकि इंडिया में जो है हर एक कोना में जो है हर एक कॉर्नर में गुड्स को पहुंचाया जा सके, यानी कि मार्केट बड़ा हो गया। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहने से क्या होता है, कहीं का भी गुड्स जो है कहीं भी पहुंचाया जा सकता है इजीली और कम कॉस्ट में। आपको मालूम है कि हम लोग को मालूम है कि बहुत सारे यहाँ पे झारखंड में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहा है जो गुजरात से आ रहा है, जो महाराष्ट्र से आ रहा है, जो दिल्ली से आ रहा है। तो ऐसा इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो आपको डेवलप हो पाया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, मार्केट साइज को बढ़ा देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसेस एबिलिटी टू वर्क, या इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होता है, जैसे आपको हेल्थ एंड एजुकेशन पे, कॉलेज पे खर्च करने से, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से क्या होगा, ये आपको एक अच्छा हेल्थ देगा, अच्छा माइंड देगा, और साथ में आपको ये स्किल जो है डेवलप करेगा। ठीक है, जो आपको एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज कर देगा, और उससे क्या होगा, एबिलिटी टू वर्क जो है वो बढ़ जाएगा। So social infrastructure enhances the efficiency and productivity increases. Infrastructure facilitates outsourcing. ठीक है, आउटसोर्सिंग जो है एक नया आपको यहाँ पर टर्म है जो कि हम आपको इससे पहले बता चुके हैं। आउटसोर्सिंग में क्या होता है, आपको जो फॉरेन कंपनीज जो है वो आपको डोमेस्टिक कंट्री, जैसे इंडिया हो गया, तो इंडिया में जो है फॉरेन कंट्रीज़ का जो फर्म्स इंडस्ट्रीज़ है वो कुछ सर्विसेज के लिए जो है हायर करता है। ठीक है, इंडियन कंपनीज़ को आपको सर्विसेज के लिए दे देता है, यानी कि प्रोडक्शन जो है कहीं और होता है लेकिन उसका जो सर्विस होता है, सर्विस जो प्रोवाइड किया जाता है वो आपको इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो उसको हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं। जैसे बीपीओ हो गया, कॉल सेंटर हो गया, केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो गया, स्टडी सेंटर्स हो गया, मेडिकल टूरिज्म हो गया। मेडिकल टूरिज्म क्या होता है, मेडिकल टूरिज्म का मतलब हो गया कि जो बाहर से फॉरेनर्स जो आता है इंडिया में आपको अपने इलाज के लिए, आप अपने हेल्थ को लेकर के जो यहाँ पे आता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ लेने के लिए, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे जो है अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं, उसको लोग बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म। यानी कि टूरिज्म का जो पर्पस है, जो टूरिस्ट है उसका मेन पर्पस है आपको मेडिकल, ठीक है, मेडिसिनल पर्पस के लिए वो इंडिया आते हैं। तो ये सब जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रहने से आपको क्या होता है, ये सब बढ़ता है, इनकम जो है बढ़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस एफडीआई, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो बाहर का कंपनी जो इन्वेस्ट करेगा वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रहने से ही करेगा। यदि हमारे पास में एनर्जी नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, रोड्स नहीं रहेगा, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा, तो फिर वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। यदि ये सब हम लोग डेवलप कर पाते हैं तो फिर क्या होगा, आपको एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो आपको अट्रैक्ट होगा। स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। अब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का हम लोग क्या पोजीशन है इंडिया में उसको हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं पहले एनर्जी। हम लोग यहाँ दो तरह का हम लोग बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का, एनर्जी पहला, और दूसरा जो है वो है आपको हेल्थ। एनर्जी का देखते हैं। इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, इंडिया जो आपको अभी जो प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी वो तीसरा, थर्ड लार्जेस्ट है पूरा दुनिया में। और ये कंज्यूमर भी जो है, ऐसा नहीं कि केवल प्रोड्यूस करता है बल्कि कंज्यूम भी करता है उतना ही, क्योंकि इंडिया एक बड़ा कंट्री है, हम सभी को मालूम है, ह्यूज पॉपुलेशन है यहाँ पे। इट इज सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। कन्वेंशनल सोर्सेज। अब देखिए कन्वेंशनल सोर्सेज जो है एनर्जी को हम लोग बांट दिए हैं दो पार्ट्स में, कन्वेंशनल सोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। तो ये दोनों के बारे में हम लोग वन बाय वन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जो पहला कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो आपको कोल है, कोयला। कोल इंडिया इज रिच इन कोल प्रोडक्शन। कोयला जो है हम सभी जानते हैं कि इंडिया में जो है काफ़ी है, ठीक है। कुछ स्टेट्स है जैसे आपको झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे जो है कोयला आपको पर्याप्त मात्रा में आपको अवेलेबल है। और यहाँ से आपको जो है कोल का प्रोडक्शन होता है, और ये आपको ना केवल खुद यूज करता है बल्कि दूसरा कंट्री को एक्सपोर्ट भी करता है कोल, ठीक है ना। उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग किसको बोलते हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज व्हिच हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ देयर नॉलेज एंड यूज, ठीक है, जो हम लोग हमेशा से यूज करते आ रहे हैं, जिसका जो बहुत पुराना आपको इतिहास रहा है और हम लोग को मालूम है, उसको हम लोग नया पहले से जो है, जो पहले से कन्वेंशनल है, यानी कि उसको यूज हम लोग करते आ रहे हैं। कोई नया जो है इनोवेशन नहीं है, ये नया चीज़ नहीं है।
नो ऑफ द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस इन इंडिया 67% कंसिस्ट ऑफ कोल। जो यहाँ पे जितना भी आपको एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसमें 67%, ठीक है, आप समझ लिए 67%, बहुत बड़ा आपको यहाँ पे परसेंटेज है, लगभग 70% हो गया ये, वो आपको कोल के द्वारा जो है, कोयला के द्वारा प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम प्रोडक्शन इज़ फार लेस देन इट्स डिमांड। प्रोडक्शन का जो पेट्रोलियम का जो प्रोडक्शन वो काफ़ी कम है। एंड लार्ज स्केल इंपोर्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम लोग ईरान से, सऊदी अरबिया से, वहाँ से काफ़ी मात्रा में हम लोग पेट्रोलियम का जो है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का हम लोग जो है इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम जो है ये बहुत बड़ा एक ठो आपको मेन आपको पार्ट है हम लोग का इंपोर्ट का। इंडिया जो इंपोर्ट करता है उसमें जो आपको एक सबसे बड़ा हिस्सा है वो आपको पेट्रोलियम का है। तो हम लोग उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं जितना हम लोग को ज़रूरत है। नेचुरल गैस मेन रिजर्व्स आर फाउंड इन मुंबई, गुजरात, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड राजस्थान। इट इज़ बाय प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल। नो नेचुरल गैस जो है इसका भी आपको रिजर्व्स मुंबई, गुजरात, त्रिपुरा, ये सब कुछ स्टेट जहाँ पे पाया जाता है। और ये आपको बाय प्रोडक्ट है, जो क्रूड ऑयल है, जो पेट्रोलियम ऑयल है, उसका बाय प्रोडक्ट है, उसी से इसको निकाला जाता है नेचुरल गैस को। नेचुरल गैस का आपको बहुत जगह पे यूज होता है, जैसे सीएनजी गैस हो गया, उसके अलावा जो आपका जो कुकिंग गैस है, एलपीजी है, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा जो आजकल जो है आपको बहुत सारे जो व्हीकल्स है, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, उसमें भी आपको गैस का यूज होने लगा है। इलेक्ट्रिसिटी, 3 मेन सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया आर थर्मल पावर स्टेशंस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड एटॉमिक पावर। जो इलेक्ट्रिसिटी आता है इंडिया में जनरली आपको 3 सोर्सेज से आता है। पहला क्या है, थर्मल पावर स्टेशन, जहाँ पे आपको जनरली कोयला का यूज किया जाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जहाँ पे वाटर से, पानी से आपको इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। थर्ड वन इज एटॉमिक पावर। एटॉमिक पावर जो आपको ये आपको न्यू है, अबाउट 2% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इंडिया में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है उसका मात्र ओनली 2% जो है वो एटॉमिक पावर से जनरेट होता है। एटॉमिक पावर का जो आपको अच्छा खास बात ये है कि वो जो आपको कार्बन जो है, कार्बन रिलेटेड जो पॉल्यूशन उसको ये कम जो है इमिट करता है, ठीक है, ये ज़्यादा पॉल्यूटेड नहीं होता है। लेकिन जो इसका जो आपको रेसिडुअल होता है एटॉमिक का, वो आपको पॉल्यूटेड हो सकता है, लेकिन वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेरिजन में काफ़ी कम होता है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स, आप लोग नॉन कन्वेंशनल को देखते हैं, जो न्यू सोर्सेस है। पहला है सोलर एनर्जी, अबाउट 37% शेयर इन टोटल रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया जो है 37 ये सोलर एनर्जी जो है वो इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो है 37%। किस में, तो रिन्यूएबल एनर्जी में है, यानी कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी है उसका 37% जो है सोलर एनर्जी, एक बड़ा हिस्सा जो है सोलर एनर्जी प्रोवाइड करता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ICA, an alliance of 121 countries initiated by Prime Minister of India Shri Narendra Modi in 2016, headquarter is in गुरुग्राम हरियाणा, हाल ही में 2016 में जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एक अलायंस जो है उसको फॉर्म किए, उसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसका जो आपको हेड क्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है। और इसमें जो है आपको 121 कंट्रीज है जो एक दूसरा को सपोर्ट करेगा और एक आपको इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव स्किल जो उसको डेवलप करेगा टू प्रोड्यूस द सोलर एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। नेक्स्ट वन इज विंड एनर्जी। विंड एनर्जी शेयर ऑफ अबाउट 45% टोटल रिन्यूएबल एनर्जी। विंड एनर्जी का जो शेयर है वो है 45%, ये आपको विंड से प्रोड्यूस किया जाता है। उसका बायोमास एंड बायोगैस एनर्जी, द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम गोबर गैस एंड थ्रू प्लांट्स एंड ट्रीज। जो आपको गोबर गैस से जो एनर्जी आपको लिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बायोगैस, ठीक है। और बाकी जो प्लांट्स एंड ट्रीज से लिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बायोमास। सो फार 643 मेगावाट कैपेसिटी फॉर द जनरेशन ऑफ द बायोमास एनर्जी हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो ये सब जो आपको बायोमास एंड बायोगैस है इसका तो अभी कम यूज होने लगा है, पहले काफ़ी यूज होता था। लेकिन जो ये बायोमास एंड बायोगैस है ये सब आपको लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर के लिए काफ़ी आपको ये इसका
स्कोप है, काफ़ी इसका यूजेज होगा, क्योंकि ये सब रिन्यूएबल है, इसको बार बार यूज किया जा सकता है। कोल तो आपको ख़त्म हो सकता है, कोयला, लेकिन ये आपको ख़त्म नहीं होगा, इसको बार बार जनरेट किया जा सकता है। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं जो जियो यानी कि अर्थ का जो गर्मी से आपको निकलता है, ठीक है, जो आपको अर्थ में जो लावा होता है या फिर जो स्प्रिंग जो निकलता है उसका एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन इंडिया 2016, ये आपको एनसीईआरटी से लिया गया, इसलिए इस डेटा को आप जो है नोट कर लेंगे, इसको आप नोट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आपको यहाँ पे पाई चार्ट देखिए, थर्मल जो है, थर्मल कितना है 67% थर्मल एनर्जी है आपको। हाइड्रो का कितना है, हाइड्रो का आपको 13.60% है। न्यूक्लियर कितना है, न्यूक्लियर 2.10% है। रिन्यूएबल एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कितना है, इसका आपको है 17.30%। ये आपको डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है 2016 का, इसको आप नोट रखेंगे, इसको आप दिमाग में याद रखना है, एनसीईआरटी से लिया गया। Now sectoral share of energy consumption, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ मेंटेन इट्स सुप्रीमेसी इन एनर्जी कंजम्पशन। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो सबसे ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीईआरटी से ये भी डेटा लिया गया है, इसको आप ध्यान से देखिए। हाउस होल्ड जो है कितना यूज करता है, 23% कंज्यूम करता है। एग्रीकल्चर जो है मात्र 18% कंज्यूम करता है। इंडस्ट्रीज जो है वो 44% कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में यूज हो रहा है वो आपको इंडस्ट्रीज में हो रहा है। ट्रांसपोर्ट 2 और दूसरा जो है 13% है। यहाँ पे यदि आप मेन से ये 3 को आप देखेंगे, एग्रीकल्चर को देखेंगे, इंडस्ट्रीज एंड हाउस होल्ड को देखेंगे, तो यहाँ पे सबसे कम जो है एग्रीकल्चर यूज कर रहा है। ये आपको एक कंसर्न है जिसको आपको ठीक करना होगा, यानी कि इंडस्ट्रीज का सबसे ज़्यादा शेयर है कंजम्पशन में, खर्च करने में, फिर आपको हाउस होल्ड, घर, और फिर एग्रीकल्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़। आप यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इंडिया का 34% है, चाइना का 46% है, देखिए काफ़ी ज़्यादा है। एक्सेस टू इम्प्रूव वाटर सोर्सेज, इंडिया 94, चाइना 96, यहाँ पे ठीक है। एक्सेस टू इम्प्रूव सैनिटेशन, चाइना 77, इंडिया 40। हाउएवर ये डेटा जो है आपको चेंज होगा, ठीक है, ये आपको पुराना डेटा 2017 का है, क्योंकि हाल ही में आपको सैनिटेशन पे काफ़ी आपको ध्यान दिया गया। मिलियंस ऑफ टॉयलेट्स हैव बीन मेड, तो इसको हम लोग एक बोल सकते हैं कि इससे इम्प्रूवमेंट हुआ। मोबाइल सब्सक्राइबर्स जो है चाइना में 93% है, इंडिया में आपको कितना है 79 है, ठीक है। सॉरी, मोबाइल सब्सक्राइबर पर 100 पीपल, 100 आदमी में कितना आदमी जो आपको मोबाइल सब्सक्राइबर है, तो यहाँ पे 93 है, इंडिया में 79 है। पावर जनरेशन बिलियन, चाइना में 6015 बिलियन किलोवाट, इंडिया में कितना है 1423 किलोवाट। ये आपको एक मेजर कंसर्न है, ठीक है। हम लोग यदि चाहते हैं कि आपको डेवलप कंट्री या फिर जो कंट्री ज़्यादा डेवलप कर रहा है उससे हम लोग उसके साथ चलें हम लोग, तो हम लोग को ये आपको काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। काफ़ी पीछे इसमें आप देख सकते हैं कि हैं हम लोग। न इमर्जिंग चैलेंजेस इन पावर जनरेशन, पावर जनरेशन में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में क्या क्या चैलेंजेज है। इनएडिक्वेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग को जितना इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत है उतना हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। सो इंडिया इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू मीट द सर्जिंग डिमांड फॉर पावर। टोटल पावर जनरेशन इज़ 3,46,619 मेगावाट, ठीक है। ये आपको डेटा लिया गया है, ये एनसीईआरटी का डेटा आपको नहीं है। लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ थर्मल पावर स्टेशंस, ठीक है। जितना यूटिलाइजेशन होना चाहिए उतना यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रही, जितना प्रोड्यूस होना चाहिए, कैपेसिटी है, क्षमता है, लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा है। जस्ट 60% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल, द रेस्ट गोज वेस्ट। जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसका 60% ही जो है यूज हो पाता है, बाकी जो है बर्बाद हो जाता है। उसका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, ना इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूट करने में, बांटने में, उसको स्टोर करने में जो है आपको उसका लॉस होता है। इन दिल्ली ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर क्लोज टू द ट्यून ऑफ 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन।
अब बताइए दिल्ली में जो है 50% जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का 50% जो वो आपको लॉस हो जाता है। इन मोस्ट स्टेट्स ऑफ द कंट्री इट इज़ मोर देन 20%। इट मे बी ड्यू टू बैकवर्ड टेक्नोलॉजी और ऑफिशियल स्टाफ, या तो बैकवर्ड टेक्नोलॉजी या फिर ऑफिशियल स्टाफ का नेग्लिजेंसी से जो है आपको ये लॉस होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, ऑल एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑल द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स आर रनिंग इनटू ह्यूज लॉसेज। जितना भी आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स इंडिया में सब जो है आपको लॉसेस में जा रहा है। In 2016-17, these boards suffered overall commercial loss of rupees 40,000 to 295 crores। अंदाज लगाइए 2016-17 में जो है ये बोर्ड्स आपको इतना जो है लॉस किया, रुपीज़ 40,295 करोड़ का आपको लॉस दिया है। सो दीज वेयर सम ऑफ द challenges of the electric power generation. Okay. So this is all about this. In next class we'll discuss about the health. Thank you.